गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक डिस्कस किया था वहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग एक काम कीजिए, पेज नंबर 52 निकाल लीजिए। तो 52 पेज का जो लास्ट पैराग्राफ है, so from that part we are going to start for today's class. All right, so in the last class we came to know that जो रिफ़ंड का जो प्रोसेस था, ठीक है, रिफ़ंड के बारे में जो भी अग्रीमेंट हुआ था वो एक्चुअली 25% के लिए हो गया था। ठीक है, तो लास्ट जो सेकंड पैराग्राफ है उसको एक बार फिर से देख लीजिए। लास्ट लाइन, थिंकिंग probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. Alright, तो पहले डेडलॉक क्या था कि 50% का रिफ़ंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो 50% का रिफ़ंड नहीं हो पाया और जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे उन लोगों ने बोला कि हम लोग सिर्फ 25% का ही रिफ़ंड कर पाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी का जो डेडलॉक था 50% का, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, ब्रेकिंग, है ना, ब्रेकिंग द डेडलॉक बोला गया है। तो उनका जो उन्होंने बोला, ठीक है, जो डेडलाइन उन्होंने दिया था कि 50% होना पड़ेगा, सो वो नहीं हो पाया। ठीक है, तो गांधी जी फाइनली क्या हो गए, वो राज़ी हो गए। ही अग्रीड टू, इवन अगर 25% भी दे रहे हैं तो वो मतलब बड़ी बात है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गांधी। नेक्स्ट देखो, दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। तो ये जो भी सेटलमेंट हुआ फाइनली, गांधी जी विथ द पीजेंट्स एंड द ब्रिटिश प्लांटर्स, ठीक है, तो उन लोगों के बीच जो भी सेटलमेंट हुआ वो यूनानिमसली हुआ। यूनानिमसली मतलब एग्रीड बाय ऑल। ठीक है, सबके बीच डिस्कशन होके सब लोग इस बात को फाइनली अग्री किया। गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर पेन या पेंसिल हो तो प्लीज़ आप लोग ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। তো এই লাইনটো বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এই লাইনটোৰ মিনিং কি কৈছে চোৱা, বুজিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰা। যে গান্ধী, একৰ্ডিং টু গান্ধী, ঠিক আছে, গান্ধীয়ে ভাবিছে যে যিমানখিনিয়ে সিহঁতে ৰিফাণ্ড কৰি আছে, be it 20%, be it 25%, be it 50%, whatever amount it is, যিমানে এমাউণ্ট হওক সিহঁতে ৰিফাণ্ড কৰি আছে। যে কিমান পাৰ্চেণ্টেজত ৰিফাণ্ড কৰি আছে সেইটো একচুৱেলি ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কথাটো, দেন দ্য ফেক্ট that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। তো পিজেন্টছবিলাকৰ যোনটো ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আছিলে আগতে, যোনটো সিহঁতৰ এটা যোনটো ফিয়াৰ সোমাই আছিলে সিহঁতৰ মনৰ ভিতৰত, ঠিক আছে, আৰু তাৰ লগত সিহঁতৰ যোনটো ছেল্ফ ৰেচপেক্ট আছিলে, যোনটো প্ৰেষ্টিজ সিহঁতে আৰ্ণ কৰিছিলে, কোনে, দেট ইজ পিজেন্টছবিলাকে, ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে, তো সেইটো সিহঁতে ঘূৰাই পাই আছে তাৰমানে। কাৰণ ব্ৰিটিছ অফিচিয়েলছবিলাকে কি কৰে, সিহঁতকতো গালি পাৰি ধমকি দি পেলাই, হয়নে, ঠগ লাইফ এইবিলাক কৈছিলে ন, ঠগছ হায়াৰ কৰি পেলাইও সিহঁতক ভয় খুৱাইছিলে। তো সেইবিলাক বস্তু সিহঁতে এতিয়া কি হৈ গ'ল, পিজেন্টছবিলাক এতিয়া মানে ফ্ৰী মাইণ্ডেড হৈ গ'ল, ফিয়াৰলেছ হৈ গ'ল এতিয়া। ঠিক আছে, আৰু সিহঁতে পইচাৰ লগত যোনটো প্ৰেষ্টিজ হেৰাই গৈছিলে, সিহঁতৰ যোনটো ছেল্ফ ৰেচপেক্ট সিহঁতৰ হেৰাই গৈছিলে, সেইটোও সিহঁতে ঘূৰাই পাই আছে। তো সেই কথাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ৰাদাৰ দেন গেটিং বেক দ্য মানি। অলৰাইট, ৰাদাৰ দেন গেটিং বেক that amount of whatever money they had actually invested upon the cultivation process। ठीक है, तो ये बात गांधी जी ने मतलब उनका थिंकिंग था, उन्होंने ये सोचा। ठीक है, पैसा रिटर्न करना, रिटर्न पाके पाना बड़ी बात नहीं था, ठीक है, लेकिन प्रेस्टीज जो उन लोगों को मिल रहा है रिटर्न, वो बड़ी बात था। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. This is more important than getting back the amount of money।
অলৰাইট তো সিহঁতে এতিয়া কি পাই আছে সিহঁতে এতিয়া কি ঘূৰাই পাইছে পইচা 25%ৰ যিমানখিনি পাইছে সিহঁতে তাৰ লগত প্ৰেষ্টিজ তাৰ লগত সিহঁতে কাৰেজ সিহঁতৰ সাহস যোনটো হেৰাই গৈছিলে যোনটো ডমিনেট কৰি ৰাখিছিলে সেইকেইটাও সিহঁতে ঘূৰাই পাই আছে লগতে সিহঁতৰ প্ৰেষ্টিজ আৰু সেल्फ ৰেসपेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये तो मैंने कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज़ है जो क्वालिटीज़ पीजेंट्स लोगों में से गुम गया था ठीक है ना तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों को अभी क्या क्या मिल रहा था इन रिटर्न दैट इज़ करेज एंड प्रेस्टीज Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. तो ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ब्रिटिश प्लांटर्स को लगने लगा कि यहाँ से हम लोगों को कुछ उतना बेनिफिट वगैरह नहीं मिल रहा ठीक है ना क्योंकि हम लोग को उल्टा क्या करना पड़ रहा है पे बैक करना पड़ रहा है तो इसलिए तो क्या हुआ कि कुछ सालों में ही ब्रिटिश जो भी प्लांटर्स थे उन लोगों ने वो सब जगह छोड़ दिया उन लोग मतलब वहाँ से चले गए थे ठीक है ना और अल्टीमेटली क्या हुआ वो जितना भी कल्टीवेशन प्रोसेस था जो भी लैंड था ठीक है पूरा कब्ज़ा अभी किसका हो गया दैट इज़ पीजेंट्स लोगों का हो गया ठीक है तो उन लोगों को डोमिनेट होके नहीं रहना पड़ा और तो यही बोला गया कि इंडिगो शेयर क्रॉपिंग इंडिगो कल्टीवेशन का जो शेयर क्रॉपिंग था जो शेयर करना पड़ रहा था वो चीज़ धीरे धीरे क्या हो गया था डिसअपियर हो गया था नहीं क्या हुई से लेटरमैन Gandhi never contented himself with large political economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. तो ये इंडिगो शेयर क्रॉपिंग का जो भी प्रॉब्लम था वो तो चलो ठीक है डिसअपियर हो गया वो सॉल्व हो गया फिर उसके बाद गांधी जी ने देखा कि उस इलाके का जो भी कल्चरल और सोशल जो बैकवर्डनेस था उस बैकवर्डनेस को गांधी जी इम्प्रूव करना चाहते थे मतलब ठीक है सोशल कंडीशन हो इकोनॉमिक कंडीशन हो कल्चरल कंडीशन हो उस चीज़ को गांधी जी ने क्या किया ऑब्जर्व किया ठीक है और उन्होंने सोचा कि इट्स टाइम नाउ टू इम्प्रूव alright to get back into such conditions which can actually uplift the conditions of these poor peasants. He appealed for teachers. Mahadev Desai and Narhari Parikh, that is two young men who had just joined Gandhi as disciples and their wives volunteered for the work. तो गांधी जी ने सोचा कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन प्रोवाइड करना ठीक है ना एजुकेशन को उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को सबसे पहले उन्होंने अप्रोच किया ठीक है एजुकेशन जो बैकवर्डनेस था उसको इम्प्रूव करने के लिए सोचा किसने महात्मा गांधी ने तो इसलिए उन्होंने क्या किया टीचर्स को बुलाया ठीक है तो कौन कौन थे वो महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक तो ये जो थे इंसान ये गांधी जी के ही डिसाइपल्स थे माने गांधी जी रे स्टूडेंट आছিলে তাৰমানে ঠিক আছে তো এই नाम किटा मनत रखिबा महादेव देसाई और नरहरि पारिक ठीक है दैट इज द डिसाइपल्स ऑफ महात्मा गांधी हु केम इनटू चंपारण डिस्ट्रिक्ट इनटू दोज विलेजेस इन ऑर्डर टू impart education to the children of those areas. Alright, next one. तो उन लोग के साथ उन लोग के वाइफ्स भी आए थे उन लोग के মানে সিহঁতৰ ঘৈণীয়েকবিলাকেও আহিছিলে কিয় হেল্পিং হেণ্ডৰ কাৰণে ঠিক আছে হেল্প কৰিবলৈ কাৰণে several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land আৰু বহুতো এনেকুৱা disciples students that is महात्मा गांधीर बहुत बेलेग बेलेग और एमिनेंट माने पर्सनालिटीज़ और है ना लोग जो कि डिसाइपल्स थे किसका महात्मा गांधी के उन लोग भी आए ठीक है देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी तो देवदास भी आए देवदास कौन थे क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क में गांधी का सबसे यंगेस्ट सन सबसे यंग ठीक है ना सबसे जो छोटे सन थे वो भी आए एंड सो डिड मिसेस गांधी ठीक है गांधी के वाइफ प्राइमरी स्कूल्स वेर ओपन इन 6 विलेजेस तो 6 विलेजेस में चंपारण डिस्ट्रिक्ट का 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल सबसे पहले खोला गया
ठीक है. कस्तूरबाई, तो एज वी ऑल नो कस्तूरबाई दैट इज वाइफ ऑफ महात्मा गांधी, taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. very important. यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कस्तूरबाई ने किस लेसन पे किस टॉपिक पे बच्चों को एडुकेट किया सबसे पहले. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? शी taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. ठीक है, ये सबसे बड़ी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. पढ़ना लिखना तो चलो यार, अ आ ई ओ ये सब लाइक ABCD ये सब तो ठीक है, ये सिखा देंगे, ये सीख जाएंगे बच्चे. लेकिन जो पर्सनल जो क्लीनलीनेस है, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों का कंडीशन बहुत ख़राब था, पुअर कंडीशन था. ठीक है, एज वी नो. तो उस चीज़ पे उन लोगों ने मतलब जो कि सोशल वेलबींग को डेवलप करने के लिए कस्तूरबाई ने क्या किया, ये सब टॉपिक्स पे बच्चों को एडुकेट किया. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट देखो, हेल्थ कंडीशंस वे मिजरेबल. हेल्थ कंडीशंस भी बहुत ख़राब थे. ठीक है, गांधी ने वो भी ऑब्जर्व किया, इंट्रोस्पेक्ट किया. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. फिर गांधी ने इसलिए क्या, हेल्थ कंडीशंस बहुत ख़राब था, इसलिए गांधी ने एक डॉक्टर को भी अपील किया, बुलाया. ठीक है, 6 महीने के लिए उनको क्या करने के लिए बोला, वहाँ पे देखभाल करने के लिए बोला गया. 3 medicines were available. 3 मेडिसिन अवेलेबल करवाया गया. क्या क्या देखो, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि नेम द 3 medicines which were made available in the villages of चंपारण डिस्ट्रिक्ट बाय महात्मा गांधी. ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, कैस्टर ऑयल, क्विनाइन जो भी बोलो आप, एंड सल्फर ऑइंटमेंट. ठीक है, अभी हर एक मेडिसिन का क्या क्या फंक्शन है ये अभी बोला जाएगा. देखो, एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. कोटेड टंग से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी अगर लोगों को परेशानी होती है, तो उसके लिए उस प्रॉब्लम के लिए लोगों को क्या दिया जाता था, कौन सा मेडिसिन, दैट इज़ कैस्टर ऑयल. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. फिर मलेरिया फीवर डिजीज़ के लिए, ठीक है, क्या कम्बिनेशन था, दैट इज़ क्विनाइन और कैस्टर ऑयल दोनों दिया जाता था. ठीक है, एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. और जिन जिन लोगों का स्किन रिलेटेड इश्यूज़ थे, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, उन लोगों को क्या मेडिसिन दिया जाता था, क्या कॉम्बो था, दैट इज़ ointment. Ointment here refers to sulfur ointment plus castor oil. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कौन सा डिजीज़ के लिए, प्रॉब्लम के लिए क्या क्या उन लोगों को मेडिसिन दिया जाता था. ठीक है, ये कम्बिनेशन आप लोग याद रखना, क्योंकि 1 mark या 2 mark में आ भी सकता है. ऑलराइट, तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं. आप लोग एक बार देख लीजिएगा. इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ऑलराइट, बाय कॉलिंग मी अप और बाय मैसेजिंग मी ऑल्सो. एंड आई होप कि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का ये जो चैप्टर है फिनिश हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद यू विल बी गेटिंग द required notes and all. Alright, so thank you very much for attending the class and have a great day ahead. Thank you very much.